x है। ओके बेटा, सो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम आज। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में एरियाज कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सबको सुनाई दे रहे? सो फाइंड द एरिया of region, find the area of the region bounded by y is equal to x square plus 2, y is equal to x is equal to 0 and x is equal to 3 is the question. क्वेश्चन समझ में आया? So you have to find the region bounded by these four curves. Okay, so first areas का जो भी question है, we'll start with drawing the graphs of the given curves. Okay, and the x-axis है, y-axis है. So how does the graph of y equal to x square plus 2 look like? कोई बोल सकते हैं y is equal to x square जो है, it's a standard vertical parabola है सर. y is equal to x square is a standard vertical parabola, right? सही क्या नहीं? Yes. y is equal to x square plus 2 का मतलब क्या है? जो y is equal to x square है वो 2 यूनिट्स ऊपर गया है सर. जो भी y equal to x square है प्लस 2 हो रहे हैं, इसका मतलब 2 यूनिट्स ऊपर गया. सो y equal to x square जो है यहां से स्टार्ट होगा. So y is equal to x square plus 2 जो है, so 2 से you get a parabolic shape with vertex at 0, 2. समझ रहे? y is equal to x square. Clear है? And next line is y is equal to x. y is equal to x क्या है? It's a straight line. Yes or no? y is equal to x. This is x square plus 2. Okay. देखिए ये मुझे ये नहीं पता है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज आई हैव नॉट ड्रॉन द ग्राफ्स टू स्केल. ऐसा ना, मैं इतना ही ड्रॉ किया कि ये कैसे दिखेगा. हो सकता है कि ये लाइन थोड़े से ऊपर जाके इसको काट भी सकता है, आई डोंट नो. ऐसा ना, ऐसा ना. Yes. तो वो काटेगा या नहीं काटेगा वो कैसे पता चलेगा? सॉल्व करना पड़ेगा. ऐसा ना. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स. दोनों को सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहे हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखा तो इसका डेल्टा जो है नेगेटिव आ रहा है. देखिए इसका बी स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्ट नहीं है. देयर आर नो रियल रूट्स, दैट मींस देयर इज नो इंटरसेक्शन. क्लियर है? इसका मतलब है जो हम डायग्राम ड्रॉ किया वो सही है. एंड कौन सा एरिया चाहिए? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, राइट? x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3. x equal to 3 is a line which is parallel to y axis. So चारों curves से, ठीक है, bounded area is this, yes or no? This is the area which you need to find out. So आप ध्यान से देखा तो ये तो x axis से करने वाला क्वेश्चन लग रहा है ना. The area you have can be found out with respect to x axis, right? Clear है? Yes or no? So area is nothing but integration 0 to 3 upper curve minus lower curve, right? सही क्या नहीं? अपर कर्व क्या है? बिकॉज वी आर डूइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस,
सो दोनों कर्व्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर्म में होना चाहिए, विच इज गुड, क्योंकि ये y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस. सो अपर कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स dx. समझ में आ रहा है? which is equal to x cube by 3 plus 2x minus x square by 2 going from 0 to 3. Yes or no? Yes. So 1 Yes. by 3 times 3 cube minus 0 cube 27 plus 2 times 3 minus 0 is 3 minus 1 by 2 times 3 square minus 0 square is 9. So 9 plus 6 15 minus 9 by 2. So कितना होगा 21 by 2 square units. Clear है क्या नहीं क्वेश्चन? Okay or not? Yes. Okay. Next question में जाओ. Yes. So next question में the curves are area bounded. Find the area bounded by y is equal to 2 to the power x, y is equal to 2x minus x square, x is equal to 0 and x is equal to 2. ये चार कर्व्स के बीच में एरिया चाहिए. ओके, and let us start with our diagrams. So x axis, y axis. Okay, clear है? So first y is equal to 2 per x का ग्राफ तो पता है ना आपको. How does the graph of y equal to 2 per x look like? Exponential curve, right? 1 तक आएगा, इसके बाद बहुत जल्दी उठ जाएगा. ऐसा ना, y is equal to 2 to the power x, right? Next y is equal to 2x minus x square. इसके बारे में कोई बात कर सकते हैं? y equal to 2x minus x square. What is the shape of this graph? Anybody? Downwards parabola. क्या होगा? Sir, downwards parabola. Downward parabola, right? This is a quadratic function. Quadratic functions are downward parabolas. But exactly कैसा होगा उसके लिए vertex थोड़ा सा लेना पड़ेगा. और आप देख सकते हैं x into 2 minus x है ना. इसका मतलब what are the points where this curve meets x axis? x axis को कहाँ मीट करेगा? एक बार 0 पे, एक बार 2 पे. ऐसा ना? Yes. क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है. इज अ डाउनवर्ड पैराबोला मीटिंग x एक्सिस एट 0 and 2. इसका मतलब है ऐसा कुछ होना चाहिए. ऐसा ना? ऐसा ना? क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर. देखिए, एक बार डाउट है तो थोड़ा सा बोल दीजिए, क्योंकि बाद में एग्जाम में आपको करना पड़ेगा ये सारा. y is equal to 2x minus x square. क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो पैराबोलास होगा. इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो तरीका है. y is equal to ax square plus bx plus c. This is a vertical parabola. There are two ways to draw this graph. The first way is using zeros. अगर आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोस पता है तो 10th क्लास का नॉलेज यूज करके आप ये बोल सकते हैं कि the graph will meet x-axis where the axes are equal to the zeros of the polynomial. ऐसा ना? इसके बाद जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको देख के आप ये बोल सकते हैं कि वो वर्टिकली अपवर्ड्स है या वर्टिकली डाउनवर्ड्स है. पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे जाएगा. क्लियर है? अगर जीरोस निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगा आपको, हर बार जीरोस इतना इजीली नहीं आएगा. सो जीरोस मुश्किल लगा तो नेक्स्ट व्हाट इज द सेकंड मेथड? कोई बोल सकते हैं? Sir, vertex find कर सकते हैं. The second method is to find the vertex of the parabola. Vertex method.
वर्टेक्स मेथड का मतलब है इसका वर्टेक्स निकालना है. वर्टेक्स इज सिंपली माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a. ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स है. सो ये वर्टेक्स निकाल के भी मतलब वर्टेक्स अगर निकालना है ये वाला पॉइंट आएगा. जीरोस में 0 एंड 2 आ रहे हैं. ओके कोई भी मेथड से आप ड्रॉ कर सकते हैं. इसके बाद व्हाट इज द थर्ड कर्व? x equal to 0 is y axis, ऐसा नो. एंड व्हाट इज द फोर्थ कर्व? x is equal to 2. इसका मतलब x equal to 2 से आप ठीक है ड्रॉ किया तो कहीं ना कहीं मीट करेगा ना इसको, इस कर्व को, ऐसा नो. सो यू वांट दिस एरिया. सो कैसे निकालना है? ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालेंगे. सो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा? 0 to 2. अपर कर्व इज 2 power x माइनस लोअर कर्व इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx. सो 2 power x का इंटीग्रेशन 2 power x by ln2, ऐसा नो. 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 2. ओके कुछ डाउट है? समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर. सो आप लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो 2 power 2 माइनस 2 power 0 कितना? 1 by ln2 is a constant. 2 power 2 minus 2 power 0 कितना? 4 minus 1 3. ओके x square 2 square minus 0 is 4 plus 1 by 3 times 8. So the answer is 3 log e to the base 2. लिख सकता हूं 1 by ln2 को ऊपर ले सकता हूं log e to the base 2, right? माइनस 4 by 3. क्लियर है क्या नहीं? ओके Yes. Yes sir. shall we go forward? Yes sir. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. ओके और नॉट? रेस्पॉन्ड करिए. हाँ Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the area bounded by these three curves. Find the area bounded by these three curves. डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके सो फर्स्ट कर्व क्या है? फर्स्ट कर्व, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फर्स्ट कर्व? देखिए एरियाज का जो भी क्वेश्चंस आएगा एग्जाम्स में 90% ऑफ द टाइम यू विल हैव ए पैराबोला इन द क्वेश्चन. पैराबोला सबसे इंपॉर्टेंट कर्व है एरियाज में. सो कैन यू सी दैट दिस कर्व इज अ पैराबोला? ये तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा है. जैसे x के प्लेस में क्या है? x माइनस 1. 4a इज ए कांस्टेंट. 4a लिख सकता हूं, 4a स्क्वायर लिख सकता हूं, कुछ भी हो. दिस इज अ कांस्टेंट, ऐसा नो. y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स x. x के प्लेस में x माइनस 1 है. इसका मतलब क्या होगा? बेसिक हॉरिजॉन्टल पैराबोला बट वर्टेक्स इज एट 1,0. सही है कि नहीं? वर्टेक्स 1,0 पे गया है. इसका मतलब कर्व जो है बेसिक हॉरिजॉन्टल पैराबोला बट इट हैज कम फॉरवर्ड. ओके दिस इज कर्व 1. व्हाट इज x इज इक्वल टू 1? बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 इज ए लाइन पैरेलल टू x इक्वल टू 1 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा नो? Y axis. क्लियर? Yes sir. And y is equal to 4a.
is a line parallel to x axis, right? ठीक है, जितना मतलब डिपेंडिंग ऑन द नंबर 4a कहीं ना कहीं तो होगा ना. So y is equal to 4a, x is equal to 1, y square is equal to 4a square times x minus 1. Clear है? So कौन सा एरिया चाहिए? I want this area. Yes or no? So this is an example of an area which can be found with respect to x-axis as well as y-axis. Yes or no? ध्यान से देखिए, दोनों तरीके से मैं फाइंड करके दिखाता हूं, दोनों सेम आंसर से आएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डू विथ रेस्पेक्ट टू x-axis, अगर x-axis की तरफ से देखना है तो आपको क्या करना है? देखिए, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट. From 1 to this point, upper curve is y is equal to 4a, lower curve is y is equal to 4a square times x minus 1. Yes or no? रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए. अगर हम x एक्सिस की तरफ से करना है तो अगर फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू फाइंड दिस पॉइंट जो मुझे दिया नहीं है. अगर ये पॉइंट को a मानता हूं, इफ आई कैन फाइंड दिस पॉइंट, 1 से लेके इस पॉइंट के बीच में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर सकता हूं. हाँ ऐसा ना? यस. सो अपर कर्व भी आपको मिल गया, y इक्वल टू 4 है. लोअर कर्व भी आपको मिल गया. सिंपली आपको इस क्वेश्चन में द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए. ऐसा ना? एक्चुअली ध्यान से देखा तो दोनों कोऑर्डिनेट्स भी जरूरत नहीं, सिर्फ x कोऑर्डिनेट आया तो हो जाएगा. ऐसा ना? I just need the x coordinate, right? यस सर. Clear? Yes, sir. So x coordinate कैसे आएगा? सॉल्व करना पड़ेगा ना दोनों को. ऐसा ना? So दोनों को सॉल्व किया तो y इक्वल टू 4a इसमें पुट किया तो 4a इंटू 4a इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1. ऐसा ना? 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया. x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 हो गया. ऐसा ना? ओके, x इक्वल टू 5. सही है क्या नहीं? हाँ सर. तो ये 5 है. इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन 1 to 5 अपर कर्व इज 4a. ऐसा ना? y इक्वल टू 4a. लोअर कर्व इज 4a स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर रूट है. ध्यान दे दीजिए. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो y स्क्वायर है, आपको y इक्वल टू व्हाट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. क्लियर है? ओके, दैट इज इक्वल टू 4a का इंटीग्रेशन 4ax माइनस रूट 4a स्क्वायर इज 2a. रूट ऑफ x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x माइनस 1 होल पावर 3/2 by 3/2. क्लियर? फ्रॉम 1 to 5. ओके और नॉट? That equal to 4a into x के प्लेस में 5 minus 1 is 4. ऐसा ना? माइनस 4a by 3 x minus 1 होल पावर 3/2. 5 पुट किया तो 4 पावर 3/2 कितना होगा? 8. 1 पुट किया तो 0 हो जाएगा. That is equal to something like, अगर 4a कॉमन लिया तो 4 minus 8/3. So 4a into 4/3, 16a by 3 square units. Okay. सर. समझ में आया? सर. हाँ बोलिए बेटा. सर वहाँ पे रूट क्यों किया है? क्या है? सर रूट क्यों किए? सही से सुना ही नहीं दे रहे बेटा. सर वो पूछ रहा है वहाँ रूट क्यों किए थे? वहाँ रूट तो सर y स्क्वायर था ना. क्योंकि ये y स्क्वायर है ना. y स्क्वायर इज 4a स्क्वायर इंटू x माइनस 1. सो y इज इक्वल टू 2a रूट x माइनस 1. ओके.
यही पूछ रहे क्या या कुछ और पूछ रहे हैं? नहीं सर। हाँ, क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सो हम इस क्वेश्चन में वी हैव डन दिस क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन को आप वाई एक्सिस की तरफ से भी देख सकते हैं। इफ यू लुक इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सिस, 0 से लेके 4a के बीच में राइट साइड कर्व इज दिस, लेफ्ट साइड कर्व इज दिस। ये दोनों कर्व्स के बीच में एरिया बोल सकता हूं। राइट साइड कर्व इज द पैराबोला, लेफ्ट साइड कर्व इज द लाइन x इक्वल टू 1। ऐसा ना? यस हाँ सर। सर। तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस आपको करना है, सिंपली इंटीग्रेशन 0 टू 4a, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू 4a, व्हाट इज द राइट साइड कर्व? बोलिए, राइट साइड कर्व क्या है? पैराबोला है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। बट ध्यान दे दीजिए हम क्या डिस्कस किए हैं, वी आर डूइंग विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। जो कर्व है उस कर्व को कैसे लिखना है? द कर्व शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, इट शुड बी ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू f ऑफ, राइट? सो आप पहला ये करना पड़ेगा, y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, राइट? सर नो, सही कि नहीं? हाँ सर। हाँ y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, राइट? सो राइट साइड कर्व जो है y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 1, लेफ्ट साइड कर्व क्या है? x इक्वल टू 1, राइट? सो यहां -1 dx, राइट? सो प्लस 1 -1 कैंसिल हो गया, सो dy होगा ना, ऐसा? g of y minus f of y dy। सो इंटीग्रेशन 0 टू 1 by 4a स्क्वायर जो है वो 1 by 4a स्क्वायर इज द कांस्टेंट। सो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन है y क्यूब by 3 गोइंग फ्रॉम 0 टू 4a। सो 1 by 12a स्क्वायर ऊपर 64a क्यूब, राइट? 4a होल क्यूब 64a क्यूब। सो a स्क्वायर a, so 4 3s are 4, 16s are, so 16a by 3 सेम आंसर आया। क्लियर है? यस सर। समझ में आया दोनों? यस सर। सो आप डायग्राम देखना है, एक्स एक्सिस की तरफ से भी देख सकते हैं, एरियाज वाई एक्सिस की तरफ से भी कर सकते हैं। क्लियर है? Shall we go to the next question? Yes, sir. So next question देखिए। So next question, the area bounded by the curves x minus 1 whole square plus 4 times y minus 1 whole square is equal to 4, and 4 times y minus 1 whole square is equal to 3 times x minus 1. What is the area of the region bounded by these two curves? Clear? से दोनों कर्व्स का नेचर समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज द नेचर ऑफ द फर्स्ट कर्व? देखिए सारा जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कर्व्स है जो आप 11th क्लास में देखे हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फर्स्ट कर्व? देखिए आप ध्यान से देखा तो इफ यू टेक दिस 4 ऑन टू
the left side, this is x minus 1 whole square by 4 plus y minus 1 whole square by 1 is equal to 1. सही है क्या नहीं? जब 4 से डिवाइड करिएगा दोनों sides, this is what you get, right? Yes, sir. So ये देखने में कौन सा कर्व लग रहा है? Ellipse है ना? Right or wrong? But center is not at origin. Center origin पे नहीं है. x के प्लेस में x minus 1 आया, y के प्लेस में y minus 1 आया. इसका मतलब सेंटर कहाँ गया? 1,1 पे सेंटर है सर. Right or wrong? Yes, sir. So x के तरफ से देखा तो it is 2 units forward and 2 units backward. A is 2, right? Y axis के तरफ से देखा तो 1 unit down and 1 unit up, right? So the curve will be something like this. समझ में आ रहा है कि नहीं? This will be touching x axis, right? Is it okay? And ये curve जो है y minus 1 whole square is equal to 3 by 4 times x minus 1. ये देखने में y square is equal to 4x जैसा है, ऐसा ना? सिर्फ x के प्लेस में x minus 1, y के प्लेस में y minus 1. इसका मतलब है इस पैराबोला का वर्टेक्स भी 1,1 पे है, ऐसा ना? इस पैराबोला का वर्टेक्स भी 1,1 पे है. हॉरिजॉन्टल पैराबोला लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? समझ में आ रहा है? So what is the area that is being asked? Actually देखा तो इस तरफ भी एरिया, इस तरफ का जो एरिया है वो भी ये दोनों कर्व से ही बाउंडेड है. इस तरफ का भी एरिया दोनों कर्व से ही बाउंडेड है, सर. नो? So you're asked to find the smaller region bounded by these two curves. Question. क्या है question? You're asked to find the smaller bounded region. Okay? इसका मतलब ये वाला region कितना है, सर? नो? यही छोटा है ना? समझ में आया नहीं? हाँ सर. देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं. आप डायरेक्टली कर सकते हैं. ओके, देखिए ये दोनों पॉइंट्स निकाल के इस क्वेश्चन में आप एक्स एक्सिस की तरफ से करना पसंद करिए या वाई एक्सिस की तरफ से करना पसंद करिएगा? देखिए अगर एक्स एक्सिस की तरफ से करना है, वाई एक्सिस. अब देखिए यहां से यहां तक एक कर्व है, यहां से यहां तक कुछ और कर्व है, ऐसा ना? यस सर. आप चाहिए तो यहां से यहां तक करके इसके बाद यहां से यहां तक अलग सा कर सकते हैं. दैट कैन बी डन. बट एक स्टेप में नहीं होगा एक्स एक्सिस की तरफ से. बट वाई एक्सिस की तरफ से अगर करना है, अगर ये दोनों पॉइंट्स आपके पास है, तब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में राइट साइड कर्व माइनस लेफ्ट साइड कर्व कर सकते हैं, ऐसा ना? कैन यू डू राइट साइड कर्व माइनस लेफ्ट साइड कर्व? कर सकते हैं. वाई एक्सिस की तरफ से करना बेटर है इसमें. बट आप ध्यान से देखिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग डायरेक्टली, इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, आई विल शिफ्ट द ऑरिजिन. इस ऑरिजिन को मैं यहां पुट कर लेता हूं. अगर ऑरिजिन को यहां पुट कर लेता हूं, मेरा एलिप्स का इक्वेशन डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. देखने में इजी लगेगा ना, ऐसा ना? क्योंकि एलिप्स का सेंटर भी 1,1 है, पैराबोला का वर्टेक्स भी 1,1 है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज ऑरिजिन, अगर इसी को ऑरिजिन मान लिया तो एरिया चेंज होगा. डज एरिया चेंज बाय चेंजिंग द ऑरिजिन? नो सर. ऐसा नो? नो, राइट? एरिया तो चेंज नहीं होगा. सो आपको कैलकुलेट करने में इजी लगेगा ना, ऐसा नो? मेरा पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4x, राइट? ऐसा नो? सो इसमें पहला स्टेप में मैं क्या किया? I have changed the
origin. समझ में आया या नहीं? हाँ सर. Okay, I have changed the origin. Clear? इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं देखिए, as you can see y axis की तरफ से करने के लिए कोशिश करूंगा. So y axis की तरफ से करना है तो ये दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा ना, ऐसा ना? I have to find the coordinates of these 2 points 1 and 2, right? So वो दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करूंगा? ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? ऐसा ना? Yes. So दोनों को सॉल्व करेंगे. y स्क्वायर सेम है ना? So x स्क्वायर by 4 plus 3x by 4 is equal to 1, ऐसा ना? So x स्क्वायर plus 3x is equal to 4, x स्क्वायर plus 3x minus 4 is equal to 0, ऐसा ना? So x plus 4 into x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 1 और कितना? minus 4. समझ में आ रहे? x equal to 1 और minus 4. Clear? Okay or not? Yes, sir. देखिए, आप ये मत सोचे कि हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं. अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा. x इक्वल टू 1 का मतलब इसी लाइन है, इस लाइन में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ना वो दोनों. सो x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से? टेकिंग दिस एज ऑरिजिन. समझ में आ रहे? यस सर. इसका मतलब इसका इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका भी x कोऑर्डिनेट 1 है. -4 तो हो नहीं सकता है ना, ऐसा ना? -4 तो उस तरफ होगा, उस तरफ से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? हाँ सर. क्लियर? सो अगर x इक्वल टू 1 पुट किया, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, सो y इज इक्वल टू √3/2, ऐसा ना? प्लस और माइनस. y क्यों निकाला? एनी आइडिया why I have found y? बोल सकते हैं y क्यों निकाला मैंने? एनीबॉडी? y क्यों निकाला? क्योंकि इंटीग्रेशन हम कौन सा वेरिएबल के हिसाब से करने वाला है? y एक्सिस की तरफ से करने वाला है ना, ऐसा ना? Yes, sir. सो y का लिमिट्स का जरूरत पड़ेगा आपको. सो व्हाट आर दी लिमिट्स? एरिया इज इक्वल इंटीग्रेशन -√3/2 टू +√3/2. समझ में आ रहे? अगेन आप कंफ्यूज Yes, मत sir. हो जाइए, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट दिस पॉइंट एज ऑरिजिन, +√3/2 ऊपर होना चाहिए, -√3/2 नीचे होना चाहिए, बट डायग्राम ऐसा नहीं है. ये -√3/2 +√3/2 कौन सा ऑरिजिन के हिसाब से? फॉरगेट अबाउट दिस रेड ऑरिजिन. समझ में आ रहे? जस्ट थिंक अबाउट दिस न्यू एक्सिस. सो न्यू एक्सिस के हिसाब से एक ऊपर है तो एक नीचे है ना. सो -√3/2 टू +√3/2. व्हाट इज द राइट साइड कर्व? The right side curve is the ellipse, right? Right side curve is the ellipse. So ellipse का equation क्या लिखना पड़ेगा? कोई बोल सकते हैं? What should I write the equation of ellipse as? ध्यान दे दीजिए, x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर आप y एक्सिस की तरफ से करना चाहते हैं, कर्व कैसे लिखना पड़ेगा? कर्व हैज टू बी रिटन एज x इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा ना? Yes. सो देखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 4, ऐसा ना? सो x इज इक्वल टू 2√1 माइनस वाई स्क्वायर. सही है क्या नहीं? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So right side curve is 2√1 minus y square minus left side curve क्या है? देखिए, y square is equal to 3/4 into x. So x क्या होगा? बोल सकते हैं x equal to what? 4y square by 3 minus 1. 4y square by 3, right? -1 तो नहीं है ना, इतना ही है ना, 4y square by 3, right? बगल में dy, right? ऐसा ना? Clear? Is it clear? Okay or not? Yes, sir. Yes, sir.
अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर -a टू +a के फॉर्म में है तब क्या करते हैं हम, y के प्लेस में -y पुट करेंगे, है सर नो? विल पुट -y इन द प्लेस ऑफ y, राइट? क्योंकि आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन में हर जगह y² है, सो y के प्लेस में -y पुट करने से कुछ फर्क पड़ेगा इंटीग्रेशन में? नहीं ना? नहीं सर। तो इसको क्या नहीं लिख सर। सकता हूं मैं, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू √3/2 2 √1 - y² माइनस 4 y²/3 dy। क्लियर है? ओके। यस सर। Yes. तो अब इंटीग्रेशन आपका काम है, √1 - y² का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, याद है √1 - y² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? बड़ा सा फॉर्मूला है ना, y/2 इंटू √1 - y² माइनस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ, याद है? निकाल Yes. सकते हैं? यस सर। तो चैलेंज है कि निकाल कर दिखाइए आंसर, देखता हूं कितने लोग का सही आंसर आएगा। आंसर में स्क्वायर रूट्स, पाई सब कुछ आएगा। आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन एंड गेट मी द आंसर। फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार फॉर्मूला देख लीजिए आपका नोट्स पे एंड ट्राई टू गेट द राइट आंसर। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। अभी 4 5 हुआ, 4 6 4 7 4 8। सो आंसर निकालने का कोशिश करिए। किसी का आंसर आया बेटा? यस सर। आंसर बोल सकते हैं कितना आया? √3/2 कितना? प्लस 2 √3/2 प्लस 2π/3 माइनस 3√3/9 प्लस c, सॉरी प्लस c। 2π/3 सही है, बट बगल में जो है वो सही नहीं आया।
सर वो शायद और सिंप्लीफाई होगा। हाँ, और सिंपल होगा तो कर लीजिए। दो टर्म्स है, एक पाई टर्म, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 टर्म, दो टर्म्स आएगा आंसर। और किसी का हुआ तो शेयर कर सकते हैं आंसर, एनीबॉडी? कोई आंसर शेयर कर सकता है अपना? सर √3/9। √3/9 9 नहीं आया यहाँ, √3 बाय बाई 6। हाँ हाँ सर बाय 6। हाँ, √3/6 है तो सही है। यस सर वो आ गया। बेसिकली द आंसर इज 2π/3 प्लस √3/6। अगर ये आया तो सही है। किसी को आया? बाकी मतलब ओके, योर आंसर इज राइट अगर ये आया तो। और कोई? और कोई बेटा? सर गलत हो गया सर, फिर से बना दें। ठीक है, ट्राई करिए क्योंकि एग्जाम में अपने को करना है। सो फॉर्मूला सही यूज किया? √1 - y² का इंटीग्रेशन क्या यूज किया आपने? रुक जाइए सर, ऐसे लिखे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फ्रेश पेज में कर। √1 - y² का इंटीग्रेशन क्या यूज किया? क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 4y²/3 तो सब लोग कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना 4y²/3 इंटीग्रेशन। सो अगर गलत हुआ तो मोस्टली √1 - y² का इंटीग्रेशन में गलत हो सकते हैं। इसका आंसर यही लिखा, y/2 × √1 - y² माइनस 1/2 साइन इनवर्स y। अगर यही किया आपने फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला यूज किया तो आपको सही आंसर आएगा। मुझे लगता है कि कुछ और फॉर्मूला यूज किया होगा थोड़ा सा, ऐसा ना? यस। तो गलत फॉर्मूला है तो गलत आंसर आएगा। सो अभी तक आप मतलब बेसिक फॉर्मूला सब कुछ याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। यस सर। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the parabola y² is equal to ax cuts x² minus y² is equal to 2a² at p and q। ओके, इसलिए दोनों जो है p and q में कट कर रहे हैं। ओके, tangent at p is drawn, tangent at p to x² minus y² is equal to 2a² cuts parabola at r। okay, find the area bounded by PQR। ओके, ये क्वेश्चन मैं रफली बोल रहा हूं, सारा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, y² इज इक्वल टू ax है। नेचर क्या है y² इज इक्वल टू ax का? पैराबोला, राइट? ऐसा नो, y² इज इक्वल टू ax, एक पैराबोला है आपके पास। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? x² माइनस y² इज इक्वल टू 2a²। ये क्या है? देखा हुआ कर्व लग रही है? व्हाट इज दिस? एनीबॉडी? दिस इज ए
इक्वेशन ऑफ विच टाइप ऑफ कर्व? हाँ, Hyperbola. हाइपरबोला, यस। ऐसा नो, हाइपरबोला का 2 आर्म्स होता है ना, ऐसा नो। वर्टेक्स क्या होगा? √2 ये, ऐसा नो, √2 ये से जाएगा, बोल रहा है कि हाइपरबोला ऐसा है, और इस तरफ भी आएगा हाइपरबोला, ओके, ऐसा नो। क्लियर है? ओके, सर लैग हो रहा है, सर मेरा लैग हो रहा है। so this is P and Q, okay. Next what you have done is you have drawn a tangent to the hyperbola at P. इसका मतलब यहां से एक tangent ड्रॉ किया आपने, कर सकते हैं? ये पैराबोला को एक पॉइंट R पे मीट कर रहे हैं। So what is the region PQR? इसका मतलब कौन सा रीजन का बात कर रहे हैं? ये रीजन है, सुनो, समझ में आया कौन सा रीजन का बात कर रहे हैं? ओके और नॉट? यस और नो? यहां तक पहला कर्व समझ में आया? यस सर। बाकी शांतनु समझ में आया कर्व्स? Yes, sir. नाउ अगर इस कर्व्स का एरिया, मतलब जो भी शेडेड एरिया चाहिए, तो हाउ डू वी क्रिएट ए स्ट्रेटजी टू फाइंड दिस एरिया? ये आप देख सकते हैं, डायरेक्टली एक्स एक्सिस की तरफ से किया तो भी नहीं आएगा, वाई एक्सिस की तरफ से किया तो भी डायरेक्टली नहीं आएगा, ऐसा नो? यस सर। एक्स एक्सिस की तरफ से देखा तो भी ऐसा कुछ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व जैसा नहीं दिख रहा है मुझे, ऐसा नो? वाई एक्सिस की तरफ से देखा तो भी एक राइट हैंड कर्व एक लेफ्ट हैंड कर्व वैसा नहीं दिख रहा है, राइट? Yes, sir. यस सर। So how do we get the area? So अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो you have to do step wise, मतलब सब कुछ एक ही स्टेप में नहीं आ रहा है तो 2-3 एरियाज में काट के आप कर सकते हैं, ऐसा ना? So जैसा आपके Yes. पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, इस एरिया को आप R पे कट कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं? एक ऊपर वाला रीजन, एक नीचे वाला रीजन। देखिए मैं क्या करता हूं, I'll do something like this, I'll divide the region. अगर मान लीजिए मुझे ये पॉइंट पता है, if I know these 3 points, then what can be done? If this is the first point, this is the second point, this is the third point, 1 और 2 के बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड कर्व माइनस लेफ्ट हैंड कर्व, ऐसा नो? राइट हैंड कर्व विल बी द हाइपरबोला, लेफ्ट हैंड कर्व विल बी द पैराबोला, ऐसा नो? प्लस 2 और 3 के बीच में अगेन राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, राइट साइड का कर्व जो है वो अभी भी हाइपरबोला है, बट लेफ्ट साइड कर्व क्या हो गया? टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन हो गया, ऐसा नो? वो जो टेंजेंट Yes, की sir. इक्वेशन है, राइट? ऐसा नो? सो हमको इंटीग्रेशन पे जाने से पहले क्या क्या निकाल के रेडी रखना है, बोलिए? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फाइंड आउट बिफोर गोइंग टू इंटीग्रेशन? बोल सकते हैं क्या क्या निकालना है पॉइंट आपको? ऑफ इंटरसेक्शन। बोलिए, बात करिए, क्या क्या निकालना है? बोल सकते हैं? चुप हो गया वापस। इंटीग्रेशन पे जाने से पहले क्या क्या निकाल के रखना है मुझे? सर पी आर हाँ, क्यू। सर पी आर क्यू।
हाँ पी क्यू आर जहाँ तीनों पे पॉइंट्स निकालना पड़ेगा ना। यस सर। एंड पी क्यू कैसा आएगा? पी क्यू जो है हाइपरबोला और पैराबोला को सॉल्व करके आएगा, ऐसा ना। बट आर निकालने के लिए और क्या करना पड़ेगा? आर निकालने के लिए आपको टैंजेंट का इक्वेशन भी निकालना है, ऐसा ना। यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट आपका पी क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इसके बाद पी पे टैंजेंट निकालना है, इसके बाद वो टैंजेंट और पैराबोला को सॉल्व करना है, ऐसा ना। Yes, sir. तो Yes, सॉल्व sir. करके तब आपको आर पॉइंट आएगा। वंस यू गेट दीज 3 पॉइंट्स देन यू गो टू इंटीग्रेशन, राइट। सो फर्स्ट स्टेप क्या है इसका सॉल्यूशन में? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax, दोनों को सॉल्व करना है। सो सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर के प्लेस में ax पुट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ax माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2a प्लस a इंटू एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0, ऐसा ना। So x plus a into x minus 2a is equal to 0, x is equal to minus a और plus 2a, ऐसा ना। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब Yes, क्या sir. है? What is the meaning of this? The meaning of this is simply जहां पे पैराबोला एंड हाइपरबोला मीट करते हैं वहां x कोऑर्डिनेट जो है वो आइदर प्लस 2a हो सकता है और माइनस a हो सकता है, ऐसा ना। तो ये दोनों में कौन सा सही है? x का वैल्यू प्लस 2a लेना है क्या माइनस a लेना है? 2a. 2a. प्लस 2a लेना है ना, क्योंकि ये राइट साइड में है, दिख रहा है ना आपको। सो x का वैल्यू प्लस 2a है दोनों पॉइंट्स का, ऐसा ना। पर हमको x का वैल्यू चाहिए या y का वैल्यू चाहिए? Y का. y का वैल्यू चाहिए ना। सो x इक्वल टू 2a हम क्या करेंगे? x इक्वल टू 2a हम इस पे पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2a, 2a स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू प्लस आर माइनस रूट 2a। क्लियर है? y इक्वल टू हाँ प्लस सर. आर माइनस रूट 2a। सो इसका मतलब ये वाला प्लस रूट 2a है, ये वाला माइनस रूट 2a। क्लियर है? ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट क्या करना है? वंस यू गेट दिस पॉइंट, टैंजेंट का इक्वेशन निकालना। वो कैसे करते हैं? हाउ डू वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ऐसा ना। सो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। So 2x minus 2y dy by dx is equal to 0. dy by dx is equal to x by y, है सो नो? डिफरेंशिएशन क्यों किया समझ में आ रहे? Why did I do the differentiation? क्योंकि टैंजेंट का स्लोप निकालना है ना मुझे। Yes, sir. So point is 2a by root 2a. What is dy by dx at the point 2a comma root 2a? बोल सकते हैं 2a by root 2a which is equal to root 2. Clear? Root 2. Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Yes. So इस tangent का slope is root 2 and इस point से जा रहे, right? So what is the equation of tangent? Equation of tangent is y minus y1 is equal to slope into x minus x1, right?
y minus y1 is equal to m into x minus x1. So y minus root 2a is equal to root 2x minus 2 root 2a. Okay. So root 2x minus y is equal to root 2a हो गया, हमको टेंजेंट आ गया. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस अब क्या करना है? सर पैराबोला के इक्वेशन का सॉल्व तो करना है आपको। टेंजेंट और पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व करना है. पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू ax. सो x के प्लेस में मैं क्या पुट कर सकता हूं? x के प्लेस में y स्क्वायर बाई a, राइट? ऐसा नो. सो रूट 2 y स्क्वायर बाई a माइनस y इज इक्वल टू रूट 2a. ऐसा नो. क्वाड्रेटिक आ गया वापस. देखिए, यस कभी कभी एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ करना पड़ सकता है आपको. शुड बी रेडी टू डू एवरीथिंग. पहला आप एक एल्गोरिथम के बारे में सोचना है, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे. वंस यू सी एवरीथिंग, एक एक चीज निकालना है, ब्लॉक बाय ब्लॉक करना है. ओके. सो इसको सॉल्व करिए. कैसे करिएगा? यहां मैं कर रहा हूं. ओके. सो रूट 2 वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इज इक्वल टू रूट 2 ए स्क्वायर. ऐसा नो. So root 2 y square minus ay minus root 2 a square is equal to 0. क्लियर है? सो सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए. कैसे सॉल्व करिएगा? देखिए, स्प्लिट करना है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ऐसा ना. सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2a स्क्वायर, यहां माइनस a. 2a स्क्वायर प्रोडक्ट होना चाहिए, माइनस a सम होना चाहिए. सो क्या कैसे स्प्लिट करिएगा? रूट 2 वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ay. देखिए, माइनस रूट 2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो रूट 2 वाई कॉमन लिया तो क्या आएगा? रूट 2 वाई कॉमन लिया तो y माइनस रूट 2a. यहां a कॉमन लिया तो y माइनस रूट 2a. ऐसा नो. यस ये पेज थोड़ा सा कम लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए. सो रूट 2 वाई कॉमन लिया तो y माइनस रूट 2 a बचेगा प्लस a टाइम्स y माइनस रूट 2 a इज इक्वल टू 0. सो सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू रूट 2 a और माइनस a बाय रूट 2. दो ऑप्शन आ रहे हैं. देखिए, ऐसा ना दिख रहे हैं? ओके और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यस देखिए, y इक्वल टू रूट 2 ये तो यही पॉइंट है जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ किया है. उस पॉइंट पे भी मीट तो कर रहे हैं ना. ऐसा ना. दूसरा पॉइंट क्या है? y इक्वल टू माइनस a बाय रूट 2. इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अभी के लिए मुझे पता नहीं है. y कोऑर्डिनेट इज माइनस a बाय रूट 2. क्लियर है? ओके. यस अब x कोऑर्डिनेट निकालना है या जरूरत नहीं है? सर नहीं जरूरत है. हाँ, जरूरत नहीं है. डोंट नीड टू वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग x. पिछले बार मुझे y चाहिए बट x निकला है फर्स्ट, इसलिए मैं y अलग सा फाइंड किया हूं. समझ में आ रहा है? सो लगभग आपका पूरा जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो गया. फर्स्ट स्टेज में क्या क्या निकालना है हमारे हिसाब से? पी क्यू आर का y कोऑर्डिनेट्स निकल गया. ऐसा ना. एंड टेंजेंट के इक्वेशन भी निकल गया. क्लियर है? यस सर अब क्या करेंगे? अब हमारा इंटीग्रेशन शुरू होगा. ओके. सो यहां तक नोट किया?
नहीं सर। ये बहुत वर्किंग हो गया इस क्वेश्चन में, बट दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू प्रैक्टिस। इससे आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा। आगे जाएंगे। Yes, sir. यस सर। सो हम PQR तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया, इसके बाद टैंजेंट की इक्वेशन भी निकाल दिया, राइट। सो नाउ लेट अस ट्राई टू फिल एवरीथिंग इन द इंटीग्रेशन। सो ये मैं निकाल रहा हूं ये पेज, ओके। सब लोग नोट किया? यस सर। सो द एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए सबसे नीचे वाला जो पॉइंट Q दिख रहा है मुझे, Q का -√2a इज द y कोऑर्डिनेट टू -a/√2 प्लस -a/√2 से लेके √2a, राइट। सो फर्स्ट इंटरवल में हाइपरबोला माइनस पैराबोला। अभी भी आप ध्यान से देखिए, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है? x² - y² इज इक्वल टू 2a², राइट। बट जब आप इंटीग्रेशन में लिखिएगा, वी आर डूइंग विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, राइट। सो x इज इक्वल टू समथिंग लिखना पड़ेगा, सर नो। सो रूट Yes. ऑफ 2a² प्लस y² आ रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए सही है क्या नहीं? x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a² प्लस y² आ रहे हैं, राइट। यस सर। माइनस पैराबोला की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू ax, सो x इज इक्वल टू y² बाई a dy। क्लियर है? ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। एंड सेकेंड इंटरवल में दिख रहा है ना आपको क्या 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 करने वाला मैं? सो सेकेंड इंटरवल में आपको हाइपरबोला माइनस स्ट्रेट लाइन करना है, सर। सो हाइपरबोला इज इवन नाउ रूट ऑफ 2a² प्लस y² माइनस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको क्या आया, कहाँ है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? √2x माइनस y इक्वल टू √2a। दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। So straight line equation x is equal to y plus √2a by √2 dy। समझ में आ रहे? यस सर। अभी भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है, सर ना। पहले एक Yes. इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा इजीली करना है तो देखिए, रूट ऑफ 2a² प्लस y² तो दोनों में सेम है ना, ये दोनों को आप क्लब कर सकते हैं, ऐसा ना। इसको मान लीजिए सेपरेट कर लीजिएगा, इसको भी दो इंटीग्रल्स में सेपरेट कर लीजिएगा। सो कैन यू ऐड दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल? -√2a से -a/√2, -a/√2 से +√2a। सो आप ऐसे लिख सकते हैं -√2a से +√2a dy। इसमें से क्या माइनस करना है? -√2a से -a/√2 y²/a माइनस करना है, और -a/√2 से लेके √2a y प्लस √2a/√2 dy माइनस करना है। क्लियर है क्या नहीं? ऐसा ना? यस सर। आप इसको 0 करके × 2 कर सकते हैं, क्योंकि y² है, y² के वजह से -y पुट किया तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा ना। सो इसको 0 करके मैं क्या करने वाला हूँ? × 2 करने वाला हूँ, ओके। Yes, sir. यस सर। सो नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद? इसका इंटीग्रेशन करना आता है? √a² प्लस x² dx। अगेन x/2 into √a² प्लस x² प्लस a²/2 into log of x प्लस √x² प्लस a²। याद है? अब आपका काम बच गया,
इसका इंटीग्रेशन करके जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज, यू गेट द आंसर। एंड आई एम गिविंग यू सम टाइम, देखते हैं कोई सही आंसर निकाल सकता है कि नहीं। देखिए मैं हिंट दे रहा हूं, इसका आंसर में भी दो टर्म्स है, एक लॉग टर्म है, एक √2 टर्म है। I just want to see whether any of you can get the answer. There are two terms. एक टर्म में log टर्म दिख रहा है मुझे आंसर में, दूसरा टर्म में √2 टर्म दिख रहा है। ये log के अंदर भी एक √2 टर्म है। So I want you to get the answer. I'll give you 3 minutes. शायद sufficient है 3 minutes इसके लिए। देखिए निकाल के दिखाइए मुझे। किसी का हुआ बेटा? किसी का हुआ बेटा? ऐसा नो? नहीं सर।
देखिए बेटा स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, जल्दी आ जाएगा। तो पहले ये दोनों तो मैं करके दिखा रहा हूँ। 1/√2 y स्क्वायर बाय 2 प्लस √2a इंटू वाई। सो क्या आएगा 1/2√2 इंटू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 3a स्क्वायर बाय 2 प्लस a इंटू √2y प्लस a बाय √2 3a बाय √2। इसे इफेक्टिवली आपको 6a स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर बाय 4√2 3a स्क्वायर बाय √2। सो 3a स्क्वायर बाय √2 कॉमन लिया तो 1/4 प्लस 1 5/4। सो एक आंसर 15a स्क्वायर बाय 4√2। इसका आंसर क्या होगा 1/a इंटू वाई क्यूब बाय 3। सो 1/3a टाइम्स वाई क्यूब किया तो माइनस a क्यूब बाय 2√2 and plus 2√2a cube. So 8 minus 1 7 7a cube by 3a into 2√2 a cancel हो गया 7a square by 6√2। सो इसका आंसर 7a square by 6√2 आ रहा है। हाँ ओके तो विल गो टू दिस। इसका आंसर है y by 2 into root of y square plus 2a square plus 2a square by 2 into ln of y plus root of y square plus 2a square. So 0 to √2a, so √2a put किया तो 2a square plus 2a square 4a square 2a a, so √2a square, this is √2a square plus a square into ln, this is √2a plus 2a, so √2a into 1 plus √2। इसके बाद 0 पुट किया तो 0 0 माइनस ln 2a माइनस ln √2a। सो आपको क्या आ रहा है √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ln 1 प्लस √2a कैंसिल हो रहे हैं। सो मेरे पास तीनों टर्म्स आ गया। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई एम गेटिंग, जो मुझे टर्म्स आ रहे हैं 2√2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर टाइम्स ln 1 प्लस √2 माइनस, यहाँ दो टर्म्स है, माइनस 7a स्क्वायर बाई 6√2 माइनस 15a स्क्वायर बाई 4√2। सो 2a स्क्वायर ln 1 प्लस √2 तो सेपरेट हो गया, प्लस a स्क्वायर बाई 12√2 अगर एलसीएम लिया तो। So 12√2 into this 24 48 minus 14 minus 45, so mine 3 minus 14 minus 11,
माइनस पूरा मिलके -11 हो रहे हैं। सो 2a² ln 1 प्लस √2 माइनस 11a² बाई 12 √2। दिस इज द आंसर। दिख रहे कैलकुलेशंस अगर आप फॉलो किया तो। समझ में आ रहे किसी को? रिस्पॉन्ड करिए। हाँ समझ सर। में आया? हाँ सर। देखिए आपका नोट्स में कचरा नहीं करना है, एक एक टर्म लेना है, उसको अलग से सॉल्व करिए तो जल्दी आ जाएगा आपको, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ एवरीथिंग एट वंस। ओके बेटा? यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? एरियाज इज ए इंटरेस्टिंग चैप्टर, जैसे ग्राफ्स का भी यूज होगा, मतलब हाउ टू गेट आंसर्स इंटेलिजेंटली। ओके, so let us stop here for today. Okay, थैंक यू सर। Doubts? Thank you, sir. Sir, okay बेटा? doubts?